Hello students, welcome to the economics class. Let's take a quick review as we have done the first chapter of statistics, meaning of statistics. Under the first chapter, introduction of statistics, meaning of statistics, we have done in the plural sense and the singular sense, importance, features, limitation, scope, all these we did it in the first chapter. Okay, now in this today we are going to start the second chapter of statistics, that is called collection of data. The name of the second chapter of statistics is the collection of data. Collection of data is the first stage under the different phases of statistical study. फेजेस कहिए या स्टेजेस कहिए, उसका पहला स्टेप जो है आपका स्टैटिस्टिक्स का या रिसर्च का, यू कैन से द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम यू कैन से, उसका पहला स्टेप जो है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा है. अंडर दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस कॉन्सेप्ट्स लाइक the meaning of data, meaning of information, how many sources of their sources for collecting the data, and the method of each sources. So here let's begin. Collection of data is the first step in the process of statistical investigation. Statistical आपको पता है, study the problem, investigation you can also say, research, subject matter, where you are going to, why you are conducting the research, why you are conducting the investigation, because of some certain issue related to the social issue, related to the economic issues, related to the business issues, and so many things. The first step of your study is collection of data. It is very essential. Data were not only sufficient. इसका मतलब यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में डेटा होना जरूरी है इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजन, बट ऑल्सो प्योर. और वो डेटा कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए और प्योर होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, है ना, फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, सो दैट दी कंक्लूजन डिराइव फ्रॉम देम. जो भी आप कंक्लूजन लोगे, जो भी आप डिसीजन लोगे, इट मे बी क्लियर. इट मस्ट बी कीप इन माइंड दैट द वर्क ऑफ collecting data must be done with the great care and indiscrimination. जब भी आप कलेक्शन करोगे किसका? डेटा का. Whenever you are going to market for collecting the data for your study, it must be free from personal biasness. Personal biasness means कोई भी उसमें धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. मतलब कि यू मस्ट टेकन केयर ऑफ great care and the indiscrimination, okay, while collecting the data. Now come to the topic or the meaning of data. What do you mean by data? First of all, the first question arises, what is the meaning of data? Data क्या है? Data means which is available in the form of quantitative information you can say. देखिए, डेटा अगर हम बात करें, डेटा और इंफॉर्मेशन बोथ आर द सिमिलर वर्ड or synonymously, both are used synonymous, but there is a little bit difference between the data and the information. अगर हम बात करें तो देखिए, डेटा क्या होता है? as we know the statistics means data. अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स किसकी बात कर रहा है? डेटा की बात कर रहा है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, which gives some meaningful conclusion. Data which is available in the form of quantitative information which will give you conclusion. So the data refers to the quantitative information which can be expressed in terms of number. Data is in the form of raw, which is unorganized or cannot derive the conclusion from it. हमने कहा कि डेटा क्या है? डेटा एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है जो कि एक्सप्रेस किया जाता है किसके टर्म्स में? नंबर्स के टर्म्स में. डेटा को दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं, डेटा क्या है? एक तरह से एक रॉ फॉर्म में होता है, विच इज अवेलेबल इन दी रॉ फॉर्म, है ना.
हम उसको क्या करते हैं, स्क्रीनिंग आउट करते हैं। बहुत सारी चीजें आप, जैसे आपको क्या करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ यू वांट टू परचेज अ न्यू सेल फोन, यू हैव टू बी कंडक्ट द रिसर्च ऑन इट, विच सेल फोन इज मोर बेटर फॉर यू, है ना। आपको गेमिंग के लिए चाहिए, आपको परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, आपको किस तरह का स्टाइलिश के लिए चाहिए, तो आपके पास एन नंबर ऑफ वैरायटीज हैं। आपको कौन सा फोन चाहिए जो कि आपके पॉकेट फ्रेंडली हो, मतलब कि बजटेड हो। तो यहां पर आपको क्या करेंगे, आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे, है ना, डेटा कलेक्ट करोगे। तो जो डेटा आप कलेक्ट करोगे उसमें जरूरी नहीं कि आपके, वो जो डेटा आप कलेक्ट करोगे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे स्टडी के मतलब के लिए नहीं है। और जब हम उसमें से क्या करते हैं, स्क्रीनिंग आउट करते हैं, छाटना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। अगर किसी कंपनी ने वैकेंसी निकाली है जॉब के लिए, तो उस जॉब की स्पेसिफिकेशन दे रखी है, ठीक है, मगर वो पब्लिश किस में गया, न्यूज़पेपर में गया, तो बहुत सारे लोग हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो जो परफेक्ट लगेगा, कंपनी क्या करेगी, उसमें से स्क्रीनिंग आउट, छटनी करेगी। छटनी मीन्स विच इज मोर रिलायबल, विच इज मोर एक्यूरेट फॉर द अवेलेबल जॉब, राइट। दैट पर्सन विल बी सिलेक्टेड फॉर द फर्दर इंटरव्यू, द फर्दर सेशन। तो उसी तरीके से जो आपको पसंद होगा उसमें से आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। तो सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो होगी, उस मतलब कि स्क्रीनिंग आउट करने के बाद अननेसेसरी को आपने रिमूव कर दिया, जो आपने स्क्रीनिंग आउट करके निकाला है वो आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, विच विल हेल्प टू ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन, विच विल हेल्प टू टेक सर्टेन डिसीजन, है ना, आप डिसीजन ले सको। तो देखिए, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ, जो कि क्या है, रॉ है। रॉ मीन्स ऐसा, रॉ कैसा, जो जिससे आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सको, वो वाला रॉ। विच इज अनऑर्गेनाइज, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो अनसिस्टमैटिक है। अनऑर्गेनाइज मीन्स अनसिस्टमैटिक, अरेंज नहीं है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज और कैन नॉट डिराइव द कंक्लूजन फ्रॉम इट, दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनेशन ऑफ डेटा। मतलब कि क्या हुआ कि वी आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट इज द ओरिजिनेशन ऑफ डेटा, कहां से वो आया है। जो भी डेटा हमने लिया है, जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसका ओरिजिनेशन हमें पता होना चाहिए। अगर हमें उसका ओरिजिनेशन नहीं पता है तो इसका मतलब वो रॉन्ग डेटा है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज सर्टेन नंबर 1 2 3 4 5, अब ये क्या है आपके लिए, 1 2 3 4 5 क्या है आपके लिए। जैसे कि मैं बोलूं कि ये नंबर क्या डिनोट कर रहे हैं, आप इसकी बेसिस में आप कोई कंक्लूजन ले सकते हो, नहीं। वी डोंट नो व्हाट दीज नंबर डिनोट्स, किसको डिनोट्स कर रहे हैं। इफ इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट दीज नंबर्स आर इन केजी, मैं केजी की बात कर रहा हूं, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg, then it will be converted into the meaningful information. Then you will able to know these numbers are denotes kg. Similarly, अगर इसके आगे मीटर लिखा होगा तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। क्या थी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रॉ, यू कैन नॉट बी एबल टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स, है ना। ये अननेसेसरी है, ये आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है। आप इसको क्या करोगे, डेटा को आप अरेंज करोगे इन अ सिस्टमैटिक मैनर, देन यू विल able to presenting these data in the form of graphs, है ना, then you will able to take the decision on the basis of these facts and figure. So this is the meaning of data. Now, what is the meaning of information? So the information refers to those data which can be arranged in a systematic manner, and on the basis of it decision making can be possible. Okay, now देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। अब हमने डेटा एंड इंफॉर्मेशन की बेस को हमने क्लैरिफाई कर लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आई होप यू कैन अंडरस्टूड द डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ डेटा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंडरी डेटा। यू कैन सेड सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, देयर आर 2 सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, यू कैन सेड। अब प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं। प्राइमरी सोर्स मीन्स जहां
जहां पर इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन दोज हु कंडक्टिंग द रिसर्च, ठीक है। रिसर्चर इज ऑल्सो अ पर्सन। पहले बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्च, रिसर्च और डिस्कवरी। इफ आई एम आस्किंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू बी आस्क्ड टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्च, रिसर्च एंड द डिस्कवरी। सोचिए, सर्च मीन्स टू फाइंड समथिंग, रिसर्च मीन्स to conduct the research again on the similar topic, दोबारा से सर्च which is available in the which is already existed in the universe, जो पहले से ही है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, दोबारा से रिसर्च कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू जनरलाइज द न्यू थ्योरीज, दैट इज द मीन ऑफ रिसर्च, कंडक्टिंग अगेन टू फाइंड आउट द सर्टेन चेंजेस एज पर दी, जैसे जमाना चेंज हो गया है तो उसके ऊपर आप क्या करते हो, पहले जमाने में जो रिसर्च हुई होगी अब इस जमाने में जो रिसर्च होगी उसके हिसाब से आपको चेंज कर देंगे, बट द फैक्ट्स एंड फिगर आर द सेम। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्कवरी? डिस्कवरी हियर इट मींस टू फाइंड आउट द हिडन ट्रूथ व्हिच इज हिडन, जो छुपा हुआ है ना, टू फाइंड आउट, टू सर्च द हिडन ट्रूथ, दैट इज कॉल्ड द डिस्कवरी। नाउ अब हम आपको बात कर रहे हैं कि जो आप रिसर्च कर रहे हो, जो आपके पास जो प्रॉब्लम है, आपकी जो स्टडी है, स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो उसमें दो तरह के आपके पास सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो बहुत सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए, प्राइमरी सोर्स क्या होता है? वो सोर्स होता है जहां पर इन्वेस्टिगेटर खुद अपने आप भी क्या करता है, रिसर्च कंडक्ट करता है और डेटा को कलेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स। ओरिजिनेशन, ओरिजिनल होता है वो डेटा, ठीक है, वो आप खुद कर रहे हो कंडक्ट, वो आपके लिए ओरिजिनल है। मगर वही डेटा अगर आपका फ्रेंड यूज कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने सेलफोन लिया और आपने कंडक्ट किया मार्केट रिसर्च, सेलफोन कौन सा बेस्ट है, और वही रिसर्च, वही जो आपका डेटा है दूसरा यूज करता है, तो वो उसके लिए क्या होगा, सेकेंडरी होगा, मगर वो तुम्हारे लिए क्या हुआ, प्राइमरी होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा भी एक तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो, जो बहुत सारी गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट करती है सोशल इश्यूज से रिलेटेड, बिजनेस इश्यूज से रिलेटेड, है ना। तो ये जो रिसर्च करती है, जैसे पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन के ऊपर जनगणना हो रही है या उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है, तो वो डेटा अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी है, और वही डेटा वो गवर्नमेंट यूज कर रही है तो उसके लिए वो क्या होगा, प्राइमरी होगा, ठीक हो गया। नाउ primary data refers to those data which is collected by investigator himself with the help of primary method. अब ये primary method क्या है, we will discuss later on, okay? There are so many methods, techniques you can say. Primary source of data implies collection of data from its sources of origin. Primary source of data जो होता है वो implies क्या कर रहा है, क्या स्टेट कर रहा है, आपको एक्सप्लेन कर रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट ओरिजिनल सोर्सेज, मतलब कि वो जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट किया गया है, ठीक है। देयर इज द डेटा विच इज ओरिजिनल इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो विंडो ड्रेसिंग, यू कैन से। विंडो ड्रेसिंग मतलब कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि फेरबदल कर देना, आंकड़ों में फेरबदल कर देना। जैसे मैंने 3,000 लिखा है डेटा को, तो आगे से मैंने एक और जीरो लगा दूंगा तो 30,000 हो जाएगा। बहुत इजीली हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक डेटा को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये वो क्या है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, फ्री फ्रॉम एनी इनडिस्क्रिमिनेशंस, है ना, कोई भी ऐसा नहीं। तो यहां पर हमने बोला ओरिजिन है। इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, वो क्या है आपके लिए, फर्स्ट हैंड है जो आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी, जो आपकी स्टडी के लिए से रिलेटेड है, ओके। इन्वेस्टिगेटर को पता है कि उसकी स्टडी प्रॉब्लम क्या है, स्टैटिस्टिकल स्टडी प्रॉब्लम क्या है, उससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। मगर वही इंफॉर्मेशन अगर दूसरा यूज कर रहा है तो उसको उस इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि उसकी दूसरे की प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है, उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। नाउ secondary source of data refers to those data which is not collected by the investigator himself. Obviously बात है, जो खुद नहीं कलेक्ट करता है, and he used the data collected by another investigator. Secondary source of collection of data implies obtaining the relevant information from the
एजेंसीज। अब यहां पर क्या कर रहा है, सेकेंडरी सोर्सेज कौन कौन से हैं जहां से वो डेटा कलेक्ट करता है, कौन कौन से सोर्सेज है? देखिए, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप कहां से कलेक्ट कर सकते हैं? एजेंसीज से, इंस्टीट्यूशन से, विच ऑलरेडी पोजेशन द इंफॉर्मेशन, जिनके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट के पास बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी हम बात करते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। ये जो है, ये क्या करती है? रिसर्च कंडक्ट करती है, और बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट करती है। GDP ग्रोथ के बारे में रिसर्च के ऊपर रिसर्च करती है, और इकोनॉमी जो साइकिल है उसके ऊपर रिसर्च करती है, और बहुत सारी चीज़, पॉपुलेशन के ऊपर, लिटरेसी के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करते रहती है। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है? इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है, लाइब्रेरी में अवेलेबल है, सेंट्रल लाइब्रेरी में अवेलेबल है, न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में क्या है? प्रिंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी पता होना चाहिए हाउ मेनी आर दी नेशनलाइज न्यूज़पेपर, ठीक है? रीजनल न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। यू शुड नो द नेम ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर्स। बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, उनके पता होना चाहिए आपको, उसकी टैगलाइंस पता होना चाहिए। इफ़ यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट देन यू शुड बी नो। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा, आप देखिए, इफ द गवर्नमेंट कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब मैंने कहा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? कंक्लूजन, गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है रिसर्च, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है पिछले। देखिए, पॉपुलेशन कब होता है, कंडक्ट कब होती है? हर 11 साल में प्रोडक्शन पॉपुलेशन को मेजर किया जाता है। अभी क्या है? अब 2021 में क्या होगा? पॉपुलेशन को मेजर किया जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन हो गई है। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन बाय हिमसेल्फ, दैट द डेटा विल बी कंसीडर एज अ प्राइमरी बिकॉज गवर्नमेंट कंडक्टिंग हिमसेल्फ। बट सच डेटा इफ वी आर यूजिंग to conduct our statistical study, then it will be considered as a secondary data. So secondary sources of collection data offers you second hand information relating to your statistical study. Okay, this is the meaning of primary sources of data and the secondary sources of data. Now we are going to start what is the difference between primary and the secondary. Then it will be helpful to you. It will more clearly the topic of primary and secondary. Let's begin. ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी में क्या होता है? सबसे पहले मीनिंग आ जाती है, प्राइमरी डेटा आर द ओरिजिनल डेटा विच इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ ओरिजिन, ठीक है? ओरिजिनल सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। सेकेंडरी में क्या है? ये क्या है? सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर समवन अदर पर्पस। ओके, प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम, सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन। थर्ड पॉइंट, प्राइमरी डेटा इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ये आपके लिए सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा टेक सो मच टाइम एंड कॉज सो मच टाइम एंड एफर्ट्स। आप क्या कह सकते हैं? सो मच टाइम एंड एफर्ट्स कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी में जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसमें टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं, और मनी भी लगता है, ठीक है? पैसा। बट इट टेक लेस टाइम, एफर्ट्स एंड मनी. It is more expensive, it is less expensive, you can also say. Okay. Fifth point, the objective of primary data is always specific. जो आपका डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं प्राइमरी सोर्सेज से, वो आपका हमेशा क्या रहेगा? स्पेसिफिक रहेगा, क्लियर रहेगा, क्लियरली डिफाइंड होगा. बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी डेटा फॉर सम अदर पर्पस बिकॉज इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड. तो वो क्या है? उसका पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ वो पहले से ही एग्जिस्टेड है, क्योंकि यहाँ तो आपका क्या है? जो पर्पस है उससे रिलेटेड आप क्या कर रहे हो? डेटा कलेक्ट कर रहे हो. मगर यहाँ सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा में क्या है? उसका जो ऑब्जेक्टिव था वही तो आप यूज कर रहे हो. दैट इज द डिफरेंस. सिक्स्थ वन, नो एडजस्टमेंट कैन टेक प्लेस इन द प्राइमरी डेटा. आप कोई एडजस्टमेंट, हाँ, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द एडजस्टमेंट. आप कोई रिक्वायरमेंट कर ही नहीं रहे, अपनी स्टडी से रिलेटेड आप क्या कर रहे हो? डेटा कलेक्ट कर रहे हो. मगर सेकेंडरी में क्या होता है? जब आप दूसरे का डेटा यूज कर रहे हो तो यू शुड मेक सर्टेन एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, क्योंकि आपका टॉपिक अलग है, उसका टॉपिक अलग है. देयर इज अ नीड टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट आर अकॉर्डिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी. ओके. Seventh point is the last point. Primary data are collected through the primary sources like direct personal investigation is the method. Secondary data are simply collected from the published or unpublished reports.
जो पब्लिश्ड हैं, जो नहीं पब्लिश्ड हैं, या अपने दोस्तों से, फैमिली से, है ना, इनफॉर्मली you can formal or informally you can say there are two sources collecting the data, secondary data, it is more convenient for the investigation. So these are the topic today we are consider in this video. If you have any doubt, you may ask it. Thank you.